ये बैकग्राउंड बराबर आता है कि देखो इसमें पीपल का पब्लिक कंप्लेंट है कि बैकग्राउंड बराबर नहीं आता है। ना ये सब पीछे रखते हो उसका मैच डाल रहा है इसका जो पीछे का ना वो सब मैच आ तो अभी बराबर है। वेटिंग रूम हाँ स्क्रीन चेक करो नर्वस सिस्टम कौन ले रहे हैं? मेनन सर ले रहे हैं क्या? नहीं आपला मॅडम घेतात. तो आपने कैसे ये किया, शेयरिंग किया? त्यांनी मला मेल पाठवला तर मेल ओपन किया मैं. अच्छा, मतलब आप शेयरिंग कर रहे हैं और मैडम बता रही है ऐसा? या. चला मॅडम स्टार्ट करा. हँग होतात. Good evening all. Today's session we will going to start with prayer. Be ready for prayer. Adopt Gyan Mudra, back straight, neck straight, shoulder relaxed and collapsed, eyes gently closed. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Release Jnana Mudra. Rub your both hands together. Touch your both hands to your eyes and to the whole face. And slowly open your eyes. Today we are going to learn about the nervous system. Second slide, please, sir. Second slide. Second slide, please, sir. Second slide. सर स्क्रीन छोटा कीजिए सर. स्क्रीन छोटा कीजिए. हाँ. Our nervous system. Today we are going to learn the nervous system. Our nervous system consists of two divisions. Our nervous system consists of two divisions. One is central nervous system. It includes the brain and the spinal cord. And second branch is peripheral nervous system, the network of nerves and the neural tissues. So the nervous system consists of divides into two divisions. One is central nervous system. It includes brain and the spinal cord. And another one is the peripheral nervous system, the network of nerves and the neural tissues. See here in the diagram, this is the brain. This is the brain and this is the spinal cord. This is our central nervous system. And in blue lines, I have shown in blue lines the nervous system all over our extremities, our internal organs, like this, our soft organs, rib cage, abdominal, and the again lower extremities. This all comes under the peripheral nervous system. So basic difference is there. Here is the brain and the spinal cord. It includes the central nervous system, and the peripheral nervous consists of this. I had shown in this blue color. Okay. Again this peripheral nervous system. मुझे लगता है कि कहीं पे तो डिस्टर्बेंस है, बहुत सारा बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बज रहा है, तो सभी को रिक्वेस्ट है कि म्यूट करो अपने आप का जो भी ऑडियो है.
और ये जो ब्लू कलर वाला जो पोर्शन मैंने दिखाया है, दिस इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. It again divides into two branches. One is autonomous nervous system and another is somatic nervous system. Autonomous nervous system again divides into two branches, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. We will see in details in the next slides. Okay. So third slide, please, sir. Third slide, please. Neurons. This is a diagram of neuron. And what are the neurons? Neurons are the nerve cells, the structural and functional units of the nervous cells. What are the neurons? Neurons are the nerve cells, the structural and the functional units of the nervous system. They conduct impulses. What is their function? They conduct impulses, enables interaction with the internal and the external environments. Cells in the nervous system which supports neurons are called as न्यूरोलजिया. सर थोड़ा स्लाइड का ये छोटा कीजिए, स्क्रीन छोटा कीजिए, पूरा स्लाइड अंदर नहीं आ रहा. स्लाइड का साइज थोड़ा छोटा कीजिए और थोड़ा 68 to 70 रखिए. हाँ. So cells in the nervous system which supports neurons are called as neuralgia. Okay. अरे ये कुछ दिख नहीं रहा है अभी, इतना छोटा कर दिया कि दिखता नहीं है कुछ. छोटा के हाँ छोटा करने मैम, वसुधा मैम, this is enough sir, this is good. Okay. आप अपने इसमें जूम करो ना, मोबाइल पे ऊपर जूम कीजिए. Now fourth slide please sir. Fourth slide. न्यूरॉन स्ट्रक्चर जो हर एक न्यूरॉन होता है, यानी कि हर एक सेल होता है हमारा ब्रेन का, इट इंक्लूड्स, दिस इज नोन एज द न्यूक्लियस. दिस इज द बॉडी ऑफ द सेल. दिस इज न्यूक्लियस. इट कंटेन्स, दिस इज द बॉडी ऑफ द. हेलो वसुधा मैम, एक्सक्यूज मी मैम, आप कर्सर आपके हाथ में कंट्रोल ले सकती हैं क्या? एक्चुअली आप जिस जगह को बोलती हैं दिस इज द सो एंड सो थिंग, वो समझ में ही नहीं आता है आप किस जगह को बोल रही हैं. मैं कर्सर ले सकती हूँ, लेकिन वहां से अगर बलराम सर से कुछ करना है तो उनको करने के लिए बोलिए. कर्सर इन इज माय हैंड, नो प्रॉब्लम. बट मैम हमें समझ में नहीं आता है आप किस चीज को इंडिकेट कर रही हैं. लेकिन ये कैसे, तो शैल आई शेयर डिफरेंट लिंक, बिकॉज मेनन सर इज द होस्ट. ओके. सो कर्सर ये कैसे मैं कर सकती हूँ, आप बता दो ना. I will show. मैम ये तभी होगा जबकि आप खुद होस्ट होंगी और आप पीपीटी शेयर कर रही होंगी, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है. वो ये क्या है, मेरा लैपटॉप जूम को रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो अगर आपको गूगल मीट आप पे ज्वाइन हो सकते हो, मैं उसमें ज्वाइन कर सकती हूँ. It will respond. Continue like this only. We'll continue. Okay. So this is the body of the neuron cell. It includes nucleus. This is the body cell, and these are the tentacles-like structures. These are known as the dendrite. These are known as the dendrite. And यहाँ से जो ऐसे वाला पोर्शन है, इसको एक्सॉन बोलते हैं. This is known as axon. और ये जो ब्रांचेस जैसे दिख रहा है, ऐसे सबसे जो बड़ा होता है उसको एक्सॉन बोलते हैं. कभी कभी वो 100 सेंटीमीटर भी लंबा हो सकता है. और इस एक्सॉन से दूसरा सेल को जोड़ जाता है, दूसरा न्यूरॉन को ये जोड़ जाता है. सो दिस इज द कनेक्टिंग ऑफ वन सेल टू अनदर सेल इज नोन एज द एक्सॉन. हाँ, और इसके ऊपर एक माइलिन शीथ नाम का शीथ रहता है. ये किस लिए है ये हम लोग आगे देखेंगे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर. स्लाइड नंबर 5. हाँ. सो हर एक नर्व फाइबर, अभी जो हमने पूरा नर्व सेल देखा उसके 3 पार्ट्स देखे, न्यूक्लियस, डेंड्रॉन्स एंड द एक्सॉन्स. एक्सॉन कनेक्ट्स वन सेल टू द अनदर सेल, दैट मीन्स वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन. हर एक नर्व फाइबर क्या रहता है, देखो इसको ऐसे कवरिंग रहता है. जैसे मैंने अभी बोला ना, माइलिन शीट, ये दिस इज द कवरिंग ऑफ ईच नर्व फाइबर. दिस माइलिन शीट इज अ कवरिंग of each fiber. And
Schwann cells only found in peripheral nervous system which can be regenerate. एक Schwann cells नाम के cells रहते हैं वो जो peripheral nervous system में रहते हैं, only those can regenerate, and जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन में वो रीजनरेट नहीं होते, वो एक बार डेड हो गए तो एक डेड हो गए, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितने भी नर्व फाइबर्स है दे कैन रीजनरेट. सो द माइलिन शीट इज अ फैटी लेयर ऑफ इंसुलेशन ऑन सम नर्व फाइबर्स. एंड द एक्सॉन, मैंने आपको अभी पहले वाले स्लाइड में एक्सॉन दिया, इट द एक्सॉन ट्रांसमिट द मैसेजेस. There are no Schwann cells on nerve fibers in the central nervous system. Therefore, damage is irreversible. जैसे मैंने आपको बोला कि there are no Schwann cells in the nerve fibers in the central nervous system. Therefore, damage is irreversible. एक बार न्यूरॉन्स ब्रेन में हमारे खत्म हो गए या डेड हो गए तो बस डेड हो गए, फिर से पैदा नहीं होंगे या फिर से ये नहीं होंगे, उनका रीबर्थ नहीं होगा. Afferent, what are the afferent nerves? Afferent nerves conduct the impulses to the central nervous system. Afferent cells क्या होता है? Afferent nerves क्या होते हैं? ये जो जितने भी impulses हम लोग सेंस ऑर्गन से ग्रहण करते हैं उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने वाले नर्व्स को afferent nerves बोलते हैं. और efferent nerves कौन से वाले हैं? They conduct the impulses from the muscles, organs and the glands. ये efferent cells होते हैं. Next slide please sir. Next slide. Slide number 6. Synapses. The nerve impulses are transmitted via branches called the synapses. The synapses are connectors, hooking dendrites and axons from one neuron to the another. ये इलेक्ट्रिक करंट होता है. ये सिनेप्सिस क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक करंट होता है. ये देखो ये सब डेंड्रॉन्स है, ये मेन न्यूरॉन सेल्स है, और जितने भी ये फाइबर्स जैसे दिख रहा है ये क्या है? ये डेंड्रॉन्स है. और जब सबसे बड़ा जो डेंड्रॉन होता है उसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं, और एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन से एक एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जोड़ना, जो जोड़ने का काम है एक सेल को दूसरे सेल को, ये डेंड्रॉन से एक्सॉन से होता है. और इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट रहता है, उस इलेक्ट्रिक करंट को सिनेप्सिस कहते हैं, और इस सिनेप्सिस से ये करंट पास होता है. तो जो नर्व इंपल्सेस होते हैं तो एक सेल से दूसरे सेल से, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक ये सिनेप्सिस से संदेश का वहन, जैसे कि ऑर्गन से ब्रेन तक और ब्रेन से हमारे ऑर्गन्स तक जो स्टिमुलेशन पास होता है वो उससे होता है. द नंबर ऑफ सिनेप्सिस इन्फ्लुएंसेस ट्रांसमिशन. ये जितना नंबर है सिनेप्सिस के, जितने इलेक्ट्रिक ये है करंट है, ये सोडियम और पोटेशियम आयन की वजह से होता है. NaCl सोडियम और पोटेशियम आयन के वजह से ये होता है और ये इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है. कैन डिक्रीजेस विद द डिसीज, लैक ऑफ स्टिमुलेशन, ड्रग्स etc. ये किससे सिनेप्सिस किससे डिक्रीज होता है? विथ डिसीजेस, उस डिसीजेस की वजह से, और लैक ऑफ स्टिमुलेशन एंड लैक ऑफ ड्रग यूज, ओवरडोज ऑफ यूज ड्रग्स आल्सो. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर. 7, स्लाइड नंबर 7. टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. यहाँ पे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देखिए. दिस इज द न्यूरॉन सेल बॉडी, दिस इज ऑल्सो अ सेल बॉडी. What is sensory neuron? What is sensory neuron? ये जब भी हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ हमारे सेंस ऑर्गन्स का यूज करते हैं तो क्या होता है? स्टिमुलेशन यहाँ से इस सेंसरी न्यूरॉन से ये अंदर आता है. देखो ऐसे अंदर आता है. दिस इज अ सेल बॉडी, दिस इज द एक्सॉन, और ये यहाँ ट्रांसमिट होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट होता है. और जो बीच वाला इंटर न्यूरॉन रहता है ये क्या करता है? ये ब्रेन तक पहुंचना है. क्योंकि इंटर न्यूरॉन का काम क्या है कि सेंसरी न्यूरॉन से सेंसेस कंडक्ट करना, उसका इंटरप्रिटेशन करना, और दूसरे से मोटर न्यूरॉन से ये बाहर भेजना, मोटर न्यूरॉन से ये ऑर्गन्स तक भेजना, ऐसे काम चलता है. एक से सेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं, ब्रेन तक पहुंचाने जाते हैं. जो इंटर न्यूरॉन जो रहता है बीच वाला, उसका काम क्या रहता है? इस सेंसेस को एक्सेप्ट करना, उसको इंटरप्रेट करना, और जो भी एक्शन लेना है वो मोटर न्यूरॉन की वजह से ऑर्गन्स तक पहुंचाना है. तो इस तरह से हमारा ये काम चलता है. तो हमारे अवयवों से ब्रेन तक जो भी सेंसेस
सेंसेस का वहन होता है, उस संदेशवाहक मज्जा तंतु को एपरेंट सेल्स बोलते हैं, उसको एपरेंट सेंसरी नर्व्स बोलते हैं। ये सेंसरी न्यूरॉन्स में इसको एपरेंट बोलते हैं। और जो भी हमारे ऑर्गन्स तक ले जाते हैं उसको मोटर न्यूरॉन्स या इफरेंट मोटर नर्व्स बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन्स या इफरेंट मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं। नाउ द फिगर नंबर 8, फिगर नंबर slide number 8, slide number 8 sir, slide number 8. White matter and gray matter, this is the portion of our brain. The outer portion is contains the gray matter and the inner portion is contains the white matter. What is this gray matter and white matter? Axons, मैंने आपको दिखाया था, ऑक्सन्स के ऊपर एक कोटिंग रहता है, एक शीट रहता है जिसको माइलाइन शीट बोलते हैं, माइलाइन शीट्स। और axons with myelin sheets are called myelinated axons, without the sheet are called the unmyelinated। तो इसकी ये देखो, व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर्स आर द माइलिनेटेड, जिसके ऊपर माइलॉन का कवरिंग रहता है, उससे हमारा ब्रेन का व्हाइट मैटर बनता है। और ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ द मासेस ऑफ अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स, इसके ऊपर कवरिंग नहीं रहता। सर हिलाइएगा मत, स्लाइड मत हिलाओ सर। ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ द मासेस ऑफ अनलाइटेड एक्सॉन्स, वो इसके ऊपर माइलाइन कवरेज नहीं रहता, इसकी वजह से हमारे ब्रेन का ऊपरी हिस्सा जो होता है उसका कलर ग्रे कलर का होता है और बीच वाला पोर्शन व्हाइट मैटर का होता है, वो उसके ऊपर माइलाइन का कवर रहता है, इसकी वजह से उसका कलर व्हाइट मैटर होता है। स्लाइड नंबर 9 सर, स्लाइड नंबर 9। ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड meninges। देखो, the meninges are the membranes of covering the brain and the spinal cord. What is meninges? What is meninges? The meninges are the membranes covering the brain and the spinal cord. हमारे ब्रेन के membranes, एक मेम्ब्रेन जैसा पोर्शन होता है which covers our brain and the spinal cord, it known as the meninges। ये देखो, ये ब्रेन से, ये ब्रेन का पोर्शन है हमारे, और इसके ऊपर के जो कवरिंग है, जो मेम्ब्रेन मेनिंजेस जो है उनके ये मैंने डिटेल में बताया है। आउटसाइड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर। ये आउटसाइड मेम्ब्रेन, हमारे ब्रेन के ऊपर का आउटसाइड जो कवर है, आउटसाइड कवर इज नोन एज द ड्यूरा मैटर। मिडल मेम्ब्रेन इज नोन एज द arachnoid, middle member is known as the arachnoid covering, and inside membrane is known as the pia mater, inside membrane is known as the pia mater। बस these are the 3 layers of our brain। the brain and the spinal cord enclosed by 3 membranes। उसको हमारा जो ब्रेन है और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसके ऊपर जो एक मेम्ब्रेनस पोर्शन होता है, उसके 3 लेयर्स होते हैं। आउटसाइड मेम्ब्रेन इज नोन एज ड्यूरा मैटर, मिडल मेम्ब्रेन इज नोन एज एंक्रोइड, एंड द इनसाइड मेम्ब्रेन इज नोन एज पिया मैटर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर, स्लाइड नंबर 10, स्लाइड नंबर 10। नाउ cerebrum, cerebrum, what is cerebrum? The part of our brain, we are knowing the cerebrum। cerebrum governs all sensory and motor activity। what cerebrum governs? cerebrum governs all the sensory and motor activity, includes sensory perception, emotion, memory and voluntary movements। and this cerebrum, our मोठा मेंदू ज्याला म्हणतात, बिग ब्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो डिवाइडेड इनटू द लेफ्ट एंड द राइट हेमिस्फीयर। हम लोग हमेशा बोलते हैं राइट हेमिस्फीयर ऑफ आवर ब्रेन, लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ आवर ब्रेन। तो ये ये राइट हेमिस्फीयर है और ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है। सो सेरेब्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट्स, वन इज लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड वन इज राइट हेमिस्फीयर। द सरफेक्स इज अरेंज्ड इन द बल्जिंग ऑफ फोल्ड्स। ये जो फोल्ड्स रहते हैं इसको सल्काय और गायराय बोलते हैं। ये जो फोल्ड्स रहते हैं, ये फोल्ड को गायराय बोलते हैं, और जो फिरोज, जो क्लेफ्ट जैसा पोर्शन दिखता है, उसको सल्कस बोलते हैं। दीज आर द सल्कस एंड दीज आर द गायराइज। ओके, स्लाइड नंबर 11 प्लीज सर, स्लाइड नंबर 11। मैंने यहाँ पे और डिटेल में दिखाया है पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। दिस इज द मेन ब्रेन, सेरेब्रम, दिस इज द सेरेब्रम। इसको और इसके भी पार्ट्स होते हैं। आगे वाला पोर्शन को फोर ब्रेन बोलते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। पीछे वाला मिडल वाला को मिड ब्रेन बोलते हैं, और
नीचे वाला को हाइंड ब्रेन बोलते हैं। ये आगे मैंने और एक अच्छी 3 डायमेंशनल पिक्चर लिया है, उसमें मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगी। सो दिस इज द पोर्शन ऑफ फोर ब्रेन। Our hypothalamus and pituitary gland lies here. The pons is here, medulla oblongata is here, and the cerebellum is here. छोटा मेंदू बोलते हैं हम लोग ये, और मिड बोन का पोर्शन यहाँ पे है। So this is the main brain, cerebrum. This is the mid brain, and this is the hind brain, the portion of the hind brain. तो हम लोग फिर एक बार ये डिटेल में आगे वाले स्लाइड में देखने वाले हैं। तो स्लाइड नंबर 12 सर, स्लाइड नंबर 12, फोर ब्रेन। नाउ यहाँ पे मैंने इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। व्हाट इज फोर ब्रेन? दैट इज द सेरेब्रम। इसमें क्या क्या आता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स एसोसिएटेड विद द हायर लर्निंग्स एंड हैज 4 लोब्स। ये 4 लोब्स हम लोग आगे वाले स्लाइड में देखेंगे, 3 डायमेंशनल स्लाइड में देखेंगे। फोर ब्रेन हैज 4 लोब्स। मिड ब्रेन फंक्शंस आर रिले स्टेशंस comprises of amygdala, hippocampus, limbic system, hypothalamus, and the pituitary gland. Midbrain consists of amygdala, hippocampus, limbic system, hypothalamus, and the pituitary gland. Now the hindbrain, हमारा लास्ट पोर्शन ऑफ आवर ब्रेन, सेरेबेलम, जिसको हम लोग छोटा मेंदू बोलते हैं, छोटा सा मेंदू, छोटा ब्रेन बोलते हैं। ये सेरेबेलम रिलेटेड विद द लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज, कंसिस्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, pons and medulla oblongata. I will show you in detail in next slide. Slide number 13 sir, slide number 13. हाँ, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन। यहाँ पे देखो ये 4 लोब्स, जो 4 लोब्स है, मैंने यहाँ पे अच्छे तरह से दिखाया है। देखो, दिस इज द फ्रंटल लोब ऑफ आवर ब्रेन। ये रेड वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, रेड वाला, दिस रेड कलर पोर्शन इज अ फ्रंटल लोब। दिस येलो वाला पोर्शन इज अ पैराइटल लोब। दिस ब्लू वाला पोर्शन इज अ टेम्पोरल लोब। हमारे कान वगैरह यहाँ पे आते हैं, हमारे ईयर्स, ये जो साइड वाला पोर्शन रहता है, मैं फिर एक बार मेरे चेहरे के ऊपर आपको दिखाऊंगी। So this is the frontal lobe, this is the parietal lobe, this is the temporal lobe, and back वाला हमारा पीछे वाला जो पोर्शन रहता है, जहाँ पे हम लोग चोटी या पोनी बनाते हैं, that is the occipital lobe. So what are the functions of frontal lobe? Problem solving, emotional traits, reasoning, judgment, speaking, voluntary motor activity, ये सब frontal lobe के functions है। पैराइटल लोब के फंक्शंस क्या है? नोइंग राइट फ्रॉम लेफ्ट, सेंसेशन, रीडिंग, बॉडी ओरिएंटेशन। हाँ, टेम्पोरल लोब के फंक्शंस क्या है? अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे ही हमारा ईयर का पोर्शन यहाँ पे ही आता है। देखो, अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, बिहेवियर, मेमोरी एंड हियरिंग। सो हमारा जब भी बोलते हैं तभी हम सुन पाते हैं, तो यहाँ पे टेम्पोरल लोब पे से ये हम लोगों को पता चलता है। एंड ऑक्सीपिटल लोब का फंक्शन क्या है? विजन एंड कलर परसेप्शन, विजन एंड कलर परसेप्शन। अभी ये देखो, ये नीचे वाला छोटा मेंदू, सेरेबेलम, मैंने यहाँ पे दिखाया है सेरेबेलम। दिस इज द सेरेबेलम। सेरेबेलम का फंक्शन क्या है? इट्स बैलेंसेस आवर बॉडी, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स, चलना, बोलना, फिरना, दौड़ना, ये सब, ये जो बैलेंसिंग मूवमेंट जो है, जो वॉलंटरी मूवमेंट्स का जो भी, उसका कंट्रोल ये छोटा मेंदू में हमारे सेरेबेलम से चलता है। फाइन मसल कंट्रोल, फाइन छोटे वाले जो फाइन जो भी मसल कंट्रोल है, वो भी यहाँ से आता है। और नाउ दिस इज द ब्रेन स्टेम, दिस इज द ब्रेन स्टेम। यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये पोर्शंस आते हैं। दिस इज नोन एज द ब्रेन स्टेम। यहाँ पे किसका किसका कंट्रोल होता है? ब्रीदिंग, बॉडी टेम्परेचर, डाइजेशन, अलर्टनेस, स्लीप एंड सॉलोइंग, इसका यहाँ से कंट्रोलिंग होता है। स्लाइड नंबर 14 सर, स्लाइड नंबर 14। दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। इट कंसिस्ट ऑफ, वसुधा मैम, जस्ट इन प्रीवियस पहले वाला स्लाइड में मैंने उसमें मिडिल ब्रेन कौन सा हुआ? मिडिल पोर्शन, मिडल पोर्शन अंदर में रहता है, वो बाहर से दिखाई नहीं देता। मिडल पोर्शन जो है ना, अंदर रहता है, बाहर से बस इतना, वो मिडल, इसीलिए तो उसको मिडल बोला है ना, ये अंदर रहता है। So spinal cord, our spinal cords consist of how many vertebra?
How many vertebrae are there? 33. 33. So you are very clever students. The spinal cord has 33 vertebrae are there. So लेकिन इसके 31 segments होते हैं. क्यों? मैं आगे देखती हूँ. 33 are there, but उसके segments 31 होते हैं. 8 cervical segments, 1 to 8. Cervical, these are the cervical vertebrae. These are the cervical vertebrae from 1 to 8. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, and C8. These are the cervical. Our cervical vertebrae are there, and this is the cervical spine. This portion is includes the cervical spine. उसके बाद हमारे thoracic spine start हो जाते हैं. देखो T1 to T12 तक, T1 to T12 तक. ये क्या है? thoracic spine है हमारे. उसके बाद 5 lumbar. I had shown in this yellow color. L1, L2, L3, L4 and L5. उसके बाद हमारे सैक्रम के 4 आते हैं. सैक्रम के 4 रहते हैं और कॉसिक्स के जो बोन्स है वो फ्यूज्ड रहते हैं. कॉसिक्स के जो फ्यूज रहते हैं और इसीलिए ये 31 नंबर. ये कुछ बोन्स हमारे सैक्रम और कॉसिक्स के फ्यूज्ड रहते हैं. उसकी वजह से द स्पाइनल कॉर्ड हैज 31 सेगमेंट्स. यहाँ पे ऐसे बोला है 8 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल, S1 फॉर S5 तक और कॉसिक्स का 1. ये जो कॉसिक्स वाले जो है वो एक में जुड़ जाते हैं. इसकी वजह से ये 31 सेगमेंट्स यहाँ पे अब बोला है. सो आपको ये विच आर द सर्वाइकल, विच आर द थोरेसिक एंड लंबर, ये आपके ध्यान में आया. बस यहाँ पे बस हमारे स्पाइनल कॉर्ड की अरेंजमेंट देखिए. और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है ये देखो, ये लंबर स्पाइन, लास्ट वाले लंबर स्पाइन तक ही रहता है. लास्ट वाले लंबर स्पाइन तक ही रहता है. L5 तक ही रहता है. उसके बाद ये रहता नहीं. तो इसके जो ब्रांचेस है वो सैक्रम और कॉसिक्स को नर्व सप्लाई होता है. तो इसीलिए देखो जब भी स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, सीजरियन सेक्शन होता है, कुछ में पूरा जनरल एनेस्थीसिया नहीं देते. जो स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं तो स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए ये हमारे लंबर वर्टिब्री चूज किते हैं. यहाँ पे स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है. जो हमारा पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सैक्रम कॉसिक्स तक नहीं रहता. वो लंबर, लास्ट वाले लंबर स्पाइन तक रहता है और उसके आगे वहां से आने वाले बस नर्व का सप्लाई सैक्रम और कॉसिक्स को रहता है. ये आप ध्यान में रखिएगा. पूरा स्पाइनल कॉर्ड हमारा सैक्रम और कॉसिक्स तक नहीं रहता. वो बस लास्ट एंड ऑफ आवर लंबर स्पाइन तक रहता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर. नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 15. सो दिस इज आवर स्पाइनल कॉर्ड. यहाँ पे हमारे वर्टेब्रल, ये वर्टेब्रा है और कैसे हमारे अरेंजमेंट रहता है ये बस यहाँ पे दिखाया है. So this is the deep diagram at each segment of the spinal cord. ये बस आप सुनिए. At each a segment of the spinal cord, left and the right pairs of sensory and motor nerves branch out and connect to the peripheral nervous system. ये यहाँ से वर्टेब्रा, 2 वर्टेब्रा जहाँ पे जुड़ते हैं वहां से सेंसरी न्यूरॉन्स बाहर जाते हैं. दोनों तरफ से, राइट और लेफ्ट तरफ से, दोनों तरफ से बाहर जाते हैं. Impulses travel back and forth to the brain and muscles via spinal cord. और जो भी impulses यहाँ से, ये देखो सेंसरी नर्व दिखाया है, ये मोटर न्यूरॉन्स दिखाया है, रेड कलर से मोटर न्यूरॉन्स दिखाया है और ये ब्लू कलर से सेंसरी न्यूरॉन दिखाया है. यहाँ से सेंसर अंदर आ गए. ये जो स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इसका मैसेजेस गया. वहां से पूरा प्रिपरेशन होके जो एक्शन लेना है वो यहाँ से मोटर न्यूरॉन से हर एक हमारे एक्सट्रीमिटीज तक ये पहुंचाया जाता है. डू यू अंडरस्टैंड? हेलो हेलो. Yes, ma'am. Okay. Next slide please sir. Slide number 16. Cerebrospinal fluid. What is cerebrospinal fluid and its function? This is the central nervous system. Again I have showed in a small diagram. This is our brain, this is spinal cord. तो cerebrospinal fluid ये कहाँ पे, कैसे, CSF, इसको हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में CSF बोलते हैं. सो इसका फंक्शन क्या रहता है? अ शॉक एब्सॉर्बर. जो हमारा पूरा ब्रेन है ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ऐसे डूबा हुआ रहता है. जैसे कि देखो हमने अगर एक पानी का बर्तन लिया ऐसा राउंड वाला और उसमें एक बॉल रखा
तो वो बॉल पानी की वजह से जैसे हिलेगा, जैसे वैसे ये और शॉक एब्जॉर्ब करेगा, वैसे ही ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। अ मैकेनिकल बफर, एक तरह का मैकेनिकल बफर यानी कि एक तरह का मैकेनिकल सॉल्यूशन रहता है। एक्ट्स एज कुशन बिटवीन द ब्रेन एंड द क्रैनियम। क्रैनियम आपको पता है, जो बोन हमारी ब्रेन स्केलेटल जो बोन से बनी हुई कैविटी रहती है ब्रेन, जिसमें ब्रेन हमारा रहता है, उसको क्रैनियम बोलते हैं। सो इट एक्ट्स एज अ कुशन बिटवीन द ब्रेन एंड द क्रैनियम। तो इसकी वजह से हमारा ब्रेन इज अ सॉफ्ट पार्ट। सो ये क्रैनियम के ऊपर क्या नहीं होता, वो ये नहीं होता, उसका क्या बोलते हैं, आघात बोलते हैं ना हम लोग ऐसे, क्या बोलते हैं, शॉक नहीं लगता, शॉक नहीं लगता, या मराठीमध्ये आपटणं म्हणतात ना, आपटणं होत नाही। ये क्या हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, धक्का भी नहीं लगता, धक्का नहीं धक्का, लगता। हाँ धक्का नहीं लगता, एक दूसरे को, हमारे ब्रेन का और क्रैनियम का एक दूसरे को धक्का नहीं लगता। Act as a reservoir and regulates the contents of the cranium. Act as a reservoir and regulates the contents of the cranium. Serve as a medium for nutritional exchanges in CNS. Transports hormones and hormones releasing factors. Removes the metabolic waste products through the absorption. Okay. So this is the function of cerebrospinal fluid. Slide number 17, sir. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मैंने पहले स्लाइड में आपको दिखाया कि पेरिफेरल नर्वस, द टू मेन ब्रांचेस, our nervous system is divided into two main branches. One is the brain and spinal cord, and PNS, PNS means peripheral nervous system. What is PNS? Now we will see in detail. It is a division of the nervous system containing all the nerves that lie outside of the CNS. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर जितने भी आते हैं, हमारे वर्टेब्रल कॉलम के दोनों साइड से, राइट और लेफ्ट साइड से जितने भी नर्व्स बाहर आते हैं, दे कम्स अंडर द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो प्राइमरी रोल क्या है इसका, टू कनेक्ट द CNS टू द ऑर्गन्स। व्हाट इज द प्राइमरी रोल, टू कनेक्ट द CNS टू द ऑर्गन्स, limbs and the skin. In addition to the 31 pairs of spinal nerves, there are 12 pairs of cranial nerves that attach to the brain. ये हम लोग थोड़ा डिटेल में देखने वाले। अभी आप ऐसे पकड़ के चलो कि यहाँ से इस PNS से, यानी कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के 12 पेयर ऑफ नर्व्स फ्रॉम ब्रेन से निकलते हैं, हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। और 31 पेयर्स ये स्पाइनल नर्व निकलते हैं, 31 जोड़ियां स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और 12 पेयर्स हमारे क्रैनियल, हमारे ब्रेन से निकलती है। ये आगे की स्लाइड में हम लोग डिटेल में, अभी आप इतना ही ध्यान में रखो। And this peripheral nervous system again divides into two main parts, autonomous nervous system and somatic nervous system. Autonomous nervous system is related to our involuntary action. Autonomous nervous system is related to our involuntary actions of our body, and that again autonomous nervous system is divided into two parts, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. I will show you in next slides once again. And somatic nervous system is related to our voluntary actions, skeletal actions. हम लोग चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, जो भी हमारे बॉडी के मूवमेंट्स करते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार जो भी करते हैं, वो इट कम्स अंडर सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स। एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंडर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम दो आते हैं, और दे आर द इनवॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। वी विल सी व्हाट आर इनवॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। स्लाइड नंबर 18 प्लीज सर। दिस क्रैनियल नर्व्स देखो, 12 पेयर्स आते हैं हमारे ब्रेन से, 12 पेयर्स आते हैं। ये देखो 12 पेयर्स कौन से, ऑल्फैक्टरी नर्व्स आर रिलेटेड टू द सेंस और स्मेल। जो भी हम लोग स्मेल करते हैं वो ऑल्फैक्टरी नर्व्स की वजह से करते हैं। ऑप्टिक नर्व्स, सेंस ऑफ साइट, हम लोग जो भी देखते हैं ऑप्टिक नर्व की वजह से देखते हैं। ऑक्यूलोमोटर, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर आई मूवमेंट्स, lid elevation, pupil contraction, lens shape are depending upon the oculomotor nerves. Trochlear, downwards and inwards eye movements
Trochlear is related to downward and inward eye movements. Trigeminal, mastication, touch, पेन एंड द टेम्परेचर. ट्राइजेमिनल, हमारे कान के ऊपर अगर हम हाथ रखेंगे, हमारे हाथ का पंजा रखेंगे और पांचों उंगलियां, हमारा अंगूठा पीछे लेकर चारों उंगलियां अगर हमारे हाथ के कान के ऊपर रखे, हमारा हाथ कान के ऊपर रखे और चारों और पांचों उंगलियां अगर हम चेहरे के ऊपर लाएंगे तो जितना पोर्शन कवर हो जाएगा इसको ट्राइजेमिनल नर्व बोलते हैं. और इसको आपने ये वर्ड भी सुना होगा कि ही सफरिंग फ्रॉम ट्राइजेमियल न्यूरालजिया. व्हाट इज ट्राइजेमियल न्यूरालजिया? तो ये नर्व यहाँ पे अफेक्ट होती है और उसकी वजह से आपके कानों में, सर में और आपके मुंह में, कान से लेकर हेड तक, कान से लेकर मुंह तक बहुत दर्द होता है. और ये कभी कभी बहुत कम भी नहीं होता तो सर्जरी करनी पड़ती है. तो उसको दिस इज द ट्राइजेमियल नर्व रिलेटेड टू मैस्टिकेशन, च्यूइंग, हमारा जो च्यूइंग, मैंडिबुलर जॉइंट जो हमारा है, टच जो भी सेंसेशन, पेन एंड टेम्परेचर से ये रिलेटेड है. एबंडेंस, आईबॉल मूवमेंट्स, फेशियल नर्व जो है वो फेशियल एक्सप्रेशन, लिप आर्टिकुलेशन, टेस्ट ऑन एंटीरियर टंग, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा एंड द टीयर्स. facial muscles are facial nerves are related to these functions. Osteo-bulo-cochlear, aesthetic, hearing and equilibrium. Glossopharyngeal, test on posterior tongue, gag refrains, swallowing and phonation of the pharynx. Vagus nerve, this is important for us. Vagus nerve is related to visceral muscles, movement, heart, lungs, intestine, etc. Spinal accessories. Spinal accessory nerves are related to trapezius and sternocleidomastoid movement. Sternum, and I will show you what is sternocleidomastoid, which is muscle is this sternocleidomastoid and the trapezius. And hypoglossal, speech movements of the tongue and swallowing. So these are the function of olfactory nodes. And our sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system is our body response, जिसको हम flight and flight response बोलते हैं, fight and flight response बोलते हैं. तो जब भी हमारे शरीर के ऊपर अगर कोई संकट आ गया तो क्या होता है, हमारा पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम अपने आप अनवॉलेंटरी वो क्या होता है, कंट्रोल होता है. हाँ ये देखो यहाँ पे मैंने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम देखा है. इट इज अ पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कंट्रोल्स द इनवॉलेंटरी फंक्शन, स्वेटिंग, ग्लैंड, सिक्रीशंस, बीपी, प्राइमरी मैकेनिज्म इन कंट्रोल फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स. ये जो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पेटिक जो ये है, जो इनवॉलेंटरी मसल के ऊपर जो भी कंट्रोल है, सॉफ्ट मसल्स है, देखो हमारे शरीर के सॉफ्ट ऑर्गन्स है. दिस इज हार्ट, दिस इज लंग, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन्स, एब्डोमेन. इसके ऊपर जितना भी हमारा सेंस कंट्रोल है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स की वजह से, इनवॉलेंटरी कंट्रोल, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक. जब भी हमारा पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम क्या करता है, इट कंट्रोल्स द आवर बॉडी, एंड सिंपैथेटिक क्या करता है, रिएक्ट करता है जब भी कोई होता है. तो हम लोग देखो हमारे सामने अगर बाघ आ गया यानी कि टाइगर आ गया तो हम बहुत घबरा जाएंगे और हम क्या सोचेंगे, एक तो टाइगर से फाइट करना चाहिए, नहीं तो दौड़ के भाग जाना चाहिए. तो दिस फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स कम्स टू फ्रॉम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. ये ऑटोनोमिक सिस्टम की वजह से जो भी इसका सिंपैथेटिक सिस्टम है उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हमारा बॉडी रिएक्ट करता है, हमारा हार्ट बीट्स बढ़ता है, हमारा रेस्पिरेशन बढ़ता है, हमारा नर्व काउंट बढ़ता है और हम लोग घबरा जाते हैं, या तो हम लोग भाग जाते हैं या तो हम लोग फाइट करते हैं. बीपी भी हमारा बढ़ता है. और पैरासिम्पेथिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, इसके अपोजिट एक्शन करता है. जो भी हमारे बॉडी में टेंशन पैदा हुआ है, व्हाट इज अवर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग, तो उस बॉडी को कंट्रोल करना चाहिए. तो उसका काम डाउन करने का जो काम है वो पैरासिम्पेथिक नर्वस सिस्टम करता है और उसकी वजह से हम लोगों का बीपी कम होता है, हमारे हार्ट बीट कम होते हैं, हमारा रेस्पिरेशन नॉर्मल में आ जाता है, कम होता है यानी कि नॉर्मल में आ जाता है, नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है. तो what is the sympathetic nervous system do? It responds for the stress factors, develops
The demanding situation, whenever the demanding situation, at that demanding situation, our body reacts, and that reaction is due to the sympathetic stimulation of the sympathetic nervous system. And what is the role of parasympathetic nervous system? To control our body after giving the fight and flight response. The control of body is governed by the parasympathetic nervous system. This is all about the nervous system. Last slide, please, sir. Thank you. Thank you very much. If you have now some question, please ask me.